ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اگر تمہیں یہ نوکری چاہیے تو آج رات میری مہمان بننا ہوگا۔ حجاب میں چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر احمر آفندی نے اسے کہا۔ اپنے باس کی یہ گھٹیا بات سن کر روشنی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ میں تھوکتی ہوں اس نوکری پر۔ یہ کہہ کر وہ دفتر سے نکل آئی، لیکن راستے میں ہی اس کی بہن کی کال نے اسے احمر آفندی کی بات ماننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس کے ابا اسپتال میں تھے اور ڈاکٹر نے فوری طور پر 5 لاکھ جمع کروانے کا کہا تھا۔ روشنی نے احمر کی بات مان لی اور اس کے بتائے گئے پتے پر پہنچ گئی، لیکن احمر جیسے ہی اس کمرے کی طرف بڑھا، تبھی اچانک تلاوت کی آواز نے اس کے قدم روک دیے، کیونکہ یہ آواز تو… وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے اس شیطان سے بچا لے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، یا تو مجھے موت دے دے یا پھر کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ میں اس شخص کے ناپاک ارادوں سے بچ سکوں۔ تو جانتا ہے کہ آج تک کسی بھی غیر مرد نے مجھے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی کبھی چھوا۔ میں نے خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یا اللہ، میں تجھ پر یقین کرتی ہوں کہ آج بھی تو مجھے بے پردہ نہیں ہونے دے گا، اور وہ بھی کسی غیر محرم کے سامنے۔ وہ یہ سب سوچنے لگی کہ کاش وہ کبھی اس جاب کے لیے انٹرویو دینے ہی نہ آئی ہوتی، نہ وہ اس جاب کے لیے آتی اور نہ ہی آج یوں بے بس ہوتی۔ اسے یاد ہے جب وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی تو وہاں بیٹھی 20 لڑکیوں میں سے صرف اسے ہی چنا گیا تھا، اور انٹرویو کوئی اور نہیں بلکہ اس کمپنی کا مالک احمر لے رہا تھا۔ احمر نے ان 20 لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے صرف اور صرف روشی کو ہی چنا تھا، کیونکہ جب وہ انٹرویو کے لیے احمر کے آفس میں گئی تو احمر اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حجاب میں لپٹی وہ لڑکی جس کی سبز آنکھیں احمر کو بہت پرکشش لگی تھیں، ان سبز آنکھوں میں کھو کر ہی احمر نے روشی کو منتخب کر لیا تھا۔ روشی کے ڈاکومنٹس پر تو اس نے سرسری سی نظر ڈالی تھی، لیکن مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2-4 سوالات کے بعد ہی اسے جاب دے دی اور اگلے دن سے جوائن کرنے کے لیے کہہ دیا۔ روشی بہت ہی کانفیڈنٹ لیکن کم گو لڑکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کس قدر مشکلات لا سکتی ہے۔ وہ تو بس اسی بات پر خوش تھی کہ اسے جاب مل گئی، کیونکہ اسے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ یہ جاب اس کے لیے کسی قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی، جسے ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنے دھکے کھائے تھے، اور آج اس انٹرویو کے لیے بھی وہ بے دلی سے ہی آئی تھی۔ جب اس نے اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھا، اور وہ بھی ایسی لڑکیاں جو بہت ماڈرن اور پرکشش تھیں، انہیں دیکھ کر روشی اور بھی نا امید ہو گئی۔ اس کا دل کیا یہاں سے واپس چلی جائے، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا شاید قسمت ساتھ دے ہی دے اور جاب مل ہی جائے۔ بس یہی سوچ کر وہ وہیں بیٹھی رہی، لیکن جب اتنی ساری لڑکیوں میں سے اسے منتخب کیا گیا تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہی سمجھی کہ شاید آج قسمت نے اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوش قسمتی اسے کہاں تک لے کر جائے گی، اور یہ جاب اس کی زندگی میں کتنے طوفان لے کر آنے والی ہے۔ جاب کے پہلے دن روشی نے اپنی روایتی سادگی اور حجاب کے ساتھ دفتر میں قدم رکھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اسی لیے سب کے ساتھ بہت مختصر بات چیت کرتی۔ دفتر کے باقی لوگ اسے ایک غیر معمولی شخصیت سمجھتے تھے، کیونکہ نہ وہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی اور نہ ہی غیر ضروری باتیں کرتی۔ وہ ہمیشہ سب سے لیا دیا رویہ رکھتی تھی۔ آفس کے دوران احمر بھی کئی دفعہ اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن روشی نے ہمیشہ اسے اگنور کیا اور اس پر بھی توجہ دیے بغیر اپنے کام میں مگن ہو جاتی، اور یہ بات احمر کو بہت بری لگتی اور اسے بہت غصہ آتا۔ احمد نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے سبق سکھا کر ہی رہے گا اور اسے حاصل کر کے
اس کا غرور مٹی میں ملا دے گا، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ اکثر ہی پردے میں چھپی لڑکیاں ایسے ایسے کام کر جاتی ہیں جو بے پردہ لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ جو مذہبی اور پردہ دار بننے کی کوشش کر رہی ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ بھی اندر سے ایسی ہی ہوگی۔ ابھی تو یہ نئی نئی ہے، اس لیے سب کو متاثر کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ جب کچھ ٹائم گزر جائے گا تو یہی لڑکی سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جسم پر بولڈ ڈریس ہوگا اور ادائیں دکھاتی نظر آئے گی۔ لیکن احمد کو یہ نہیں پتا تھا کہ روشی ان سب لڑکیوں میں سے نہیں ہے۔ احمد نے روشی کے رویے کو چیلنج کیا تھا۔ وہ روز بروز اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی نرمی سے تو کبھی اپنے عہدے کا دبدبہ استعمال کر کے، لیکن روشی اپنی حدود کو بخوبی سمجھتی تھی اور اس کے ہر حربے کو نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن احمد نے اپنے آفس میں روشی کو بلایا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ روشی اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ احمد نے دھیمی لیکن طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، روشی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں یہاں جاب کس وجہ سے ملی ہے؟ تمہیں یہ جاب کسی عام لڑکی کی طرح نہیں ملی، اور نہ ہی تمہاری قابلیت کی وجہ سے، بلکہ تمہاری خاص شخصیت کی وجہ سے ملی ہے۔ روشی نے فوراً جواب دیا، سر، میں اپنی قابلیت پر یقین رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ جاب کسی اور وجہ سے حاصل کی ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ احمد نے اس کے اعتماد کو محسوس کیا، لیکن اس کا ارادہ بدلنے والا نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم بہت کانفیڈنٹ ہو، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تعلقات بنانا اور سمجھوتے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روشی نے پہلی بار نظریں اٹھائیں اور کہا، سر، میرے اصول اور میری تربیت مجھے ایسے تعلقات یا سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے ہمیشہ محنت پر یقین رکھا ہے اور اسی بنیاد پر آگے بڑھوں گی۔ اگر آپ کو میرے کام پر شک ہے تو آپ مجھے یہاں سے فارغ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر غصے کے آثار واضح ہو گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ یہ دنیا تمہارے اصولوں پر نہیں چلتی، بلکہ طاقتور لوگ اسے اپنے طریقے سے چلاتے ہیں۔ روشی نے سکون سے جواب دیا، سر، شاید آپ صحیح ہوں، لیکن میرے اصول میرے لیے اہم ہیں۔ میں اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر روشی کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد نے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر روشی کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ روشی اس وقت اپنے معمول کے کاموں میں مگن تھی، لیکن اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ احمد کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے اپنی دعا اور ایمان کو مضبوط رکھا اور فیصلہ کیا کہ اگر حالات اس کی برداشت سے باہر ہوئے تو وہ یہ جاب چھوڑ دے گی، لیکن اسے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی، اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی اور کام میں مگن ہو گئی، لیکن اس کا دل مسلسل اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ ابھی وہ کام کر رہی تھی کہ اسے ایک کال آئی۔ کال سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی بہن نے بتایا کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ انہیں اسپتال لے کر جا رہی ہے۔ اس نے روشی سے کہا کہ وہ بھی جلدی سے اسپتال پہنچے۔ یہ سن کر روشی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور احمد کے دفتر چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر آنے کی اجازت ملی تو وہ گھبرائی ہوئی احمد کے پاس پہنچی اور کہا، سر، مجھے چھٹی چاہیے۔ میرے بابا اسپتال میں ہیں اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، چلو ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ روشی نے جلدی سے شکریہ کہا، اپنے کیبن سے بیگ اٹھایا اور فوراً آٹو کروا کر سیدھا اسپتال چلی گئی۔ روشی جب اسپتال پہنچی تو وہاں کا ماحول کافی کشیدہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کو ڈھونڈا جو ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ روشی تیزی سے اس کے پاس گئی اور پریشان ہو کر پوچھا، کنزا، بابا کیسے ہیں؟
डॉक्टर्स ने क्या कहा? किंजा ने आंसू पोंछते हुए कहा। डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि हालत काफी नाजुक है और अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। ये सुनकर रोशी के दिल को धचका लगा। वो फौरी तौर पर डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर से बात करने के बाद उसे मालूम हुआ कि उनके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। रोशी और किंजा दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर अपने वालिद के लिए दुआएं करने लगी। दूसरी तरफ ऑफिस में अहमद बैठा कुछ सोच रहा था। फिर उसे रोशी का ख्याल आया तो उसने सोचा क्यों ना कॉल करके रोशी से उसके वालिद की तबीयत के बारे में पूछ लूं। थोड़ा इम्प्रेशन ही बढ़ जाएगा और फिर शायद रोशी मेरे बारे में सोचना शुरू कर दे। ये सब सोचते हुए अहमद ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ रोशी को कॉल मिलाई। उसने रोशी से पूछा, तुम अस्पताल पहुंच गई? सब ठीक है ना? रोशी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जी सर, पहुंच गई हूं, लेकिन बाबा की हालत काफ़ी ख़राब है। बस दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। अहमद ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं हाजिर हूं। रोशी ने शुक्रिया अदा किया और दोबारा दुआ करने में मशगूल हो गई। अस्पताल के कॉरिडोर में वक्त जैसे रुक गया था और हर गुजरता लम्हा उनके लिए कयामत से कम नहीं था। रोशी सोच रही थी कि बाबा की सर्जरी के लिए इतनी रकम कहाँ से लाए। हमारे तो रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। वो मुसलसल पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच रही थी और ये भी गौर कर रही थी कि कौन उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आ रहा था जो उसकी मदद कर सके। अचानक उसके दिमाग में झमाका हुआ और उसने सोचा, क्यों ना मैं दफ्तर में बात करके अपनी तनख्वाह एडवांस ले लूं और हर माह अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाती रहूं। ये सोचते हुए उसे एक हल्की सी उम्मीद नजर आई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और उसने बताया कि तुम्हारे वालिद को होश आ गया है और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सुनकर दोनों की जान में जान आई। वो फौरन वार्ड की तरफ गई और अपने बाबा को देखा जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। वो दोनों जाकर उनके पास खड़ी हो गई। किंजा मुसलसल रोए जा रही थी क्योंकि वो जब्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन रोशी खुद को संभाले हुए थी क्योंकि वो अपने बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने किंजा को भी कहा, रोना बंद करो, बाबा परेशान हो जाएंगे। किंजा ने अपने आंसू साफ किए और हाशिम आगा के करीब जाकर लिपट गई। वो बोली, बाबा देखें, आप अपनी दवा ठीक से नहीं लेते, इसीलिए आप दोबारा से बीमार हो गए हैं। रोशी ने किंजा की बात सुनकर अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, क्या बाबा ये ठीक कह रही है? हाशिम आगा ने आहिस्ता से कहा, नहीं, बस कल की डोज मिस हो गई थी, इसी वजह से ये सब हुआ। रोशी नाराज होकर बोली, देखे बाबा, आप अपना ख्याल नहीं रखते, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। हाशिम आगा मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं, ऐसा मत करना, मैं तो जो 4 दिन की जिंदगी जी रहा हूं ये भी नहीं जी पाऊंगा। आइंदा मैं अपनी दवाई का अच्छे से ख्याल रखूंगा और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूंगा। रोशी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसे नहीं, आप मुझसे वादा करें कि आपने जो कहा है वैसा ही करेंगे। हाशिम आगा ने मुस्कुराते हुए रोशी का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, वादा। ये सुनकर किंजा और रोशी दोनों मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में डॉक्टर आया और हाशिम आगा को चेक करने लगा। हाशिम आगा ने डॉक्टर से पूछा, मैं घर कब जा सकता हूं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। फिर डॉक्टर ने रोशी की तरफ इशारा करते कहा, आप मेरे साथ मेरे केबिन में आए। रोशी डॉक्टर के साथ केबिन में गई। डॉक्टर ने कहा, देखें, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इन्हें बहुत सीरियस अटैक आया है और अगला हार्ट अटैक इनके लिए आखिरी साबित हो सकता है। मेरा मशवरा है कि आप जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करवा लें। रोशी ने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं कोशिश करती हूँ।
परेशान होकर वो वहां से उठी और कॉरिडोर में जाकर कुछ देर के लिए बैठी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर दोबारा वार्ड में चली गई। वहां किंजा अपने बाबा से बातें कर रही थी और हाशिम आगा मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों को देख रहे थे। किंजा और हाशिम आगा की बातें सुनकर रोशी वार्ड के दरवाजे पर ही रुक गई। उसे अपने वालिद की मुस्कुराहट देखकर सुकून का एहसास हुआ, लेकिन डॉक्टर की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। वो जानती थी कि सर्जरी करवाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए रकम का इंतजाम एक बड़ा मसला था। रात के वक्त जब किंजा सो गई और हाशिम आगा भी नींद में चले गए तो रोशी वार्ड के बाहर आकर बैठ गई। उसका दिल बहुत बेचैन था। वो अपनी तनख्वाह से एडवांस लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी खौफ था कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम शायद मुमकिन ना हो। रात यूं ही सोचते हुए बीत गई। सुबह डॉक्टर ने चेकअप के बाद हाशिम आगा को डिस्चार्ज कर दिया और वो अपनी बेटियों के साथ घर आ गए। किंजा और रोशी अपने बाबा का हर तरह से ख्याल रख रही थी। रोशी ने कहा, किंजा तुम जाकर आराम कर लो, मैं बाबा के पास बैठती हूँ। किंजा ने हाँ में सर हिलाते कहा, ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मैं बाबा के पास बैठ जाऊंगी और तुम आराम कर लेना। हाशिम आगा ने अपनी बेटियों को प्यार से देखा और कहा, लोग तो ऐसे ही बेटे मांगते हैं, मेरी तो बेटियां ही बेटों से बढ़कर हैं। शायद बेटे भी ऐसा ना ख्याल रखते। फख्र है मुझे तुम दोनों पर। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा दी और अपने बाबा के गले लग गई। फिर किंजा आराम करने के लिए चली गई और रोशी अपने बाबा से इधर उधर की बातें करने लगी। अगले दिन रोशी जब दफ्तर पहुंची तो पूरा स्टाफ उससे उसके बाबा की खैरियत मालूम करने लगा। रोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो पहले से बेहतर हैं। सबने उनके वालिद के जल्द सेहतमंद होने की दुआ दी और रोशी ने उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अहमद दफ्तर में आया। उसने रोशी को देखा तो सीधा उसकी तरफ आ गया और कहा, रोशी, तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है अब? रोशी ने जवाब दिया, पहले से बेहतर हैं। अहमद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, चलो अब जो पेंडिंग काम पड़ा है उसे जल्दी से मुकम्मल करो, फिर मैं तुम्हें कल की मीटिंग का एजेंडा दूंगा। उसे सही तरह तरतीब देकर मुझे भेज देना। रोशी ने हाँ में सर हिलाया और अपना काम करने लगी, लेकिन उसका जहन बार बार अपने बाबा की तरफ जा रहा था। वो सोच रही थी कि सर्जरी कैसे करवाई जाए, क्या वो अहमद से बात करे, लेकिन वो हिचकिचा रही थी क्योंकि दफ्तर ज्वाइन किए उसे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। वो बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, मुझे रास्ता दिखा, मेरे बाबा की जिंदगी तेरे ही हाथ में है। जल्दी से अपना पेंडिंग काम मुकम्मल करने के बाद वो अहमद के पास फाइल चेक करवाने गई। अहमद ने फाइल देखकर कहा, हाँ ये ठीक है, अब एजेंडा लो और इसे अच्छी तरह तरतीब देकर वापस दो, कोई गलती मत करना। रोशी ने हाँ में सर हिलाया और बाहर जाने लगी कि अचानक अहमद ने उसे आवाज दी, तुम परेशान लग रही हो, खैरियत है? क्या तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हैं? अहमद के इतना कहते ही रोशी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने जल्दी से साफ करते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरे बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द उनकी हार्ट सर्जरी ना की गई तो अगला अटैक आखिरी साबित हो सकता है, और सर्जरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं चाहती हूं अगर आप मुझे एडवांस सैलरी दे दें तो मैं हर महीने अपनी तनख्वाह से रकम कटवाती रहूंगी। ये सुनकर अहमद ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, इतनी देर में तुम ये काम मुकम्मल करके दो। रोशी ने अपने आंसू साफ किए और अपने केबिन में जाकर काम करने लगी। इधर अहमद कैमरे से इसकी परेशान सूरत देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। वो सोच रहा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं इसे बताऊंगा कि किसी को हासिल करने के लिए किस हद तक मजबूर किया जा सकता है। अब तो ये खुशी खुशी अपना सब कुछ मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर कहाँ का ये हिजाब और कहाँ की ये पारसाई। ये सब सोचते हुए
अहमर ने कहकहा लगाया और बोला, वाह रे किस्मत, तो कितनी मेहरबान है, अब आएगा मज़ा इसकी अकड़ तोड़ने में। मुसलसल मुस्कुराते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने मैनेजर को बुलाया, उसे कुछ हिदायत दी और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में रोशी ने सारा काम मुकम्मल करके अहमर को दे दिया। अहमर ने काम लेते हुए कहा, गुड, अब बैठो। रोशी ने जवाब दिया, नहीं सर, मुझे और भी काम करना है, जल्दी से निपटा लेती हूँ। अहमर ने इसरार करते हुए कहा, वो तो काम बाद में भी हो जाएगा, तुम बैठो तो सही। रोशी ना चाहते हुए भी बैठ गई। अहमर कितनी ही देर खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो उसकी नज़रों से उलझन का शिकार हो रही थी, लेकिन कुछ कहने से गुरेज कर रही थी। आखिरकार रोशी ने कहा, सर अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो क्या मैं जा सकती हूँ? अहमर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठा और रोशी के बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। रोशी अहमर की इस हरकत से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया। अहमर उसकी झिझक को नोट करते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, अगर तुम चाहती हो कि ये नौकरी तुम्हारे पास रहे तो आज रात तुम्हें मेरी मेहमान बनना होगा और मुझे खुश करना होगा। ये सुनकर रोशी के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने अभी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अहमर ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया और कहा, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर तुम इनकार करती हो तो इस नौकरी को भूल जाना। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस नौकरी को बचा सकती हो, और वो ये कि आज रात तुम मेरे साथ। अहमर ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। रोशी जो कब से अपने जज्बात को काबू में रखे हुए थी, अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कहा, मैं थूकती भी नहीं आपकी नौकरी पर। आपको आपकी नौकरी मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी या आपके पैसे। ये कहते ही वो तेजी से जाने लगी, लेकिन अहमर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहमर की इस हरकत से रोशी को जैसे करंट सा लगा। उसने सख्ती से अहमर की तरफ घूर कर देखा और कहा, ये क्या हरकत है, छोड़े मेरा हाथ। अहमर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सामने किया और बोला, एक बार फिर सोच लो, ये ना हो कि तुम अपनी जिद की वजह से अपने बाबा की जिंदगी से हाथ धो बैठो। रोशी ने अहमर की आंखों में देखा और पुरएतमाद आवाज में कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरे बाबा की जिंदगी हुई तो वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर ही लेंगे। ये कहकर रोशी ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और अहमर के केबिन से निकल गई। अपने केबिन में आकर उसने लंबे लंबे सांस लिए और खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। पानी पीने के बाद उसने अपना बैग उठाया और दफ्तर से निकलने की तैयारी करने लगी। अहमर उसे जाता हुआ देख रहा था कि उसने एक कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई तो अहमर ने कहा, देखो किंजा, मैं तुम्हारे बाबा की जान बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बहन को मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे बोलो कि वो मेरी बात मान जाए और तुम्हारे बाबा के ऑपरेशन के लिए जितनी रकम चाहे ले ले। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे बाबा की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर किंजा ने कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं आप ही से बात करती हूँ। अहमर ने कॉल काट दी और फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि अब तुम कैसे इनकार करती हो। किंजा ने अभी फ़ोन ही रखा था कि उसके बाबा की कराहने की आवाज़ आई। वो फौरन अपने बाबा के पास पहुंची। हाशिम आगा दर्द से बिलबिला रहे थे और अपने सीने की बाएं जानिब हाथ रखे हुए थे। किंजा घबराकर आगे बढ़ी और अपने बाबा को सहारा देकर बेड पर बिठाया, फिर जल्दी से टैक्सी के लिए कॉल करने लगी। 5 ही मिनट में टैक्सी उनके घर के सामने आ गई। किंजा ने जैसे तैसे करके हाशिम आगा को टैक्सी में बिठाया और अस्पताल के लिए रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने कहा, इनका फौरी ऑपरेशन करना होगा, वरना हम इन्हें नहीं बचा सकेंगे। ये सुनकर किंजा के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन अपनी बहन को फ़ोन किया जो रास्ते में थी और घर की तरफ आ रही थी। रोशी ने जैसे ही कॉल अटेंड की,
किंजा की रोती हुई आवाज सुनाई दी। रोशी परेशान होकर बोली, किंजा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा तो ठीक है ना? किंजा ने रोते हुए कहा, बाबा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन का कहा है। आप प्लीज अहमद की बात मान लें ताकि बाबा की जिंदगी बचाई जा सके। उसके बदले में हमें ऑपरेशन के लिए पैसे तो मिल रहे हैं। अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो इस दुनिया में बाबा का ही रिश्ता सब कुछ है। अगर वो भी छिन गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सुनकर रोशी का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने कहा, तुम रो मत और डॉक्टर से मेरी बात कराओ। किंजा ने अपने आंसू साफ करते हुए मोबाइल डॉक्टर को दिया। रोशी ने डॉक्टर से कहा, आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं थोड़ी ही देर में पैसे लेकर आती हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूँ, आप जल्दी पहुंचे। रोशी ने फोन रखा और फौरन रिक्शे वाले से कहा कि वापस दफ्तर ले चले। दफ्तर के सामने पहुंचकर किराया अदा करने के बाद वो काफी देर तक दफ्तर के सामने खड़ी सोचती रही कि वो अंदर कैसे जाए और अहमद से बात कैसे करे। लेकिन उसे अंदर तो जाना ही था। उसने हिम्मत की और अंदर चली गई। अहमद के केबिन के दरवाजे पर जाकर उसने नॉक किया। अहमद को पहले ही मालूम था कि कौन आया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ। रोशी जब अंदर गई तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था, लेकिन अहमद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो मुसलसल इसकी तरफ देख रहा था। बोलो, अब क्या कहना है? अहमद ने पूछा। रोशी ने कहा, ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी। आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं अपने बाबा का ऑपरेशन शुरू करवा सकूं। ये सुनकर अहमद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने कहा, बैठो, मैं पैसे मंगवाता हूं। अहमद ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा, फौरन 5 लाख का चेक लेकर आओ। मैनेजर चेक लेकर आया तो अहमद ने चेक पर दस्तखत किए और रोशी को पकड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही रोशी ने चेक लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अहमद ने चेक पीछे कर लिया और कहा, पहले मुझे बताओ, जो मैंने कहा था उस सब के लिए तुम तैयार हो? रोशी ने दिल पर पत्थर रखते हुए हाँ में सर हिलाया। ये देखकर अहमद ने मुस्कुराते हुए उसे चेक पकड़ाया और कहा, जाओ अपने बाबा का ऑपरेशन कराओ और जब वहां से फारिग हो जाओ तो सीधा मेरे पास आना। याद रखना, अगर कोई चालाकी या होशियारी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी बहन के साथ कुछ भी बुरा होते नहीं देख सकोगी। ये सुनकर रोशी ने फौरन नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं कोई होशियारी नहीं करूंगी, बस मेरे बाबा का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। अहमद संजीदा होते हुए बोला, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब जाओ, कहीं देर ना हो जाए। रोशी फौरन उठकर जाने लगी तो अहमद ने कहा, रुको, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आता है। अहमद ने ड्राइवर को हिदायत दी कि उसे अस्पताल पहुंचा दे। ड्राइवर ने रोशी को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर रोशी ने 5 लाख का चेक डॉक्टर को दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया। किंजा और रोशी बाहर बैठी दोनों दुआओं में मसरूफ थीं और अपने बाबा की जिंदगी के लिए दुआ मांग रही थीं। उन्हें इस वक्त कोई और बात याद नहीं थी। उन्हें याद था तो बस इतना कि बाबा का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। 6 घंटे के मुसलसल लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और कहा, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। अब तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि उन्हें कोई टेंशन ना हो ताकि दोबारा कोई मसला पैदा ना हो। तो दोनों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम बाबा का पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ना शुरू किया और उनके पीछे एक नर्स निकली तो किंजा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और कहा, सिस्टर, क्या हम अपने बाबा से मिल सकते हैं? नर्स ने कहा, नहीं, अभी वो रिकवरी रूम में है। जब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो फिर आप मिल सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों दोबारा अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं और खुदा का शुक्र अदा करने लगी।
5 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद जब हाशिम आगा को रूम में शिफ्ट किया गया तो रोशनी भी जल्दी से रूम की तरफ बढ़ी और अपने बाबा को देखने लगी, जो अभी भी दवाओं की वजह से गनूदगी में थे, मगर ठीक थे। वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उनका चेहरा देखकर रोशी के दिल को कुछ हुआ, लेकिन उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब घर जाएंगे तो इनकी खूब खिदमत करके दोबारा से पहले की तरह कर देंगे। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ी और अपने बाबा का ड्रिप वाला हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि वाकई उनके बाबा उनके साथ हैं। थोड़ी देर बाद जब हाशिम आगा को होश आया तो उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोलकर अपनी बेटियों की तरफ देखा, जो कि उनके पास ही बैठी हुई थी। तो वो मुस्कुराने लगे और कहा, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। रोशी ने अपने बाबा की बात सुनी तो उसका दिल खुशी से भर आया। उसने आहिस्ता से कहा, बाबा आप बिल्कुल ठीक हैं, हमने दुआ की थी और अल्लाह ने सुन ली। किंजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा हमने कहा था कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। हाशिम आगा ने उन्हें देखते हुए अपने कमज़ोर हाथों से दोनों बेटियों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी बचा ली, अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे। वो दोनों अपने बाबा के पास बैठकर उनकी देखभाल करने लगी और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने लगी। रोशी ने दिल में सोचा कि वो और किंजा हमेशा अपने बाबा का ख्याल रखेंगी, क्योंकि उनके लिए दुनिया में सबसे अहम शख्स हाशिम आगा ही थे। चंद दिनों बाद जब हाशिम आगा की हालत मज़ीद बेहतर हुई तो डॉक्टर ने कहा, अब आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है और आपको मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं, बस आराम की ज़रूरत है। हाशिम आगा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और रोशी और किंजा दोनों ने खुश होकर एक दूसरे को देखते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है। रोशी अभी भी बैठी अपने बाबा से बात कर रही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। रोशी ने जब देखा तो अहमर की कॉल थी। कॉल देखते ही वो परेशान हो गई और वहां से एक्सक्यूज़ करती उठकर बाहर कॉरिडोर में आई और कहा, कॉल अटेंड करके अभी हेलो ही बोला था कि दूसरी तरफ से अहमर की आवाज़ उभरी और कहा, उम्मीद है तुम्हारे बाबा अब ठीक हो गए हैं, अब अपना अधूरा काम पूरा करो और आज रात मेरा ड्राइवर आएगा, उसके साथ बैठकर चुपचाप वो जहां लेकर जाए पहुंच जाना, और अगर कोई छोटी सी भी चूं चरा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोशी ने घबरा कर कहा, नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं पहुंच जाऊंगी जहां आप कहेंगे। ये सुनकर अहमर के दिल को खुशी हुई और कहा, गुड, मैं रात का बेचैनी से वेट कर रहा हूं। गुड बाय माय लेडी, अब रात में मुलाकात होगी, वो भी स्पेशल किस्म की। वो मायने खेजी से कहते फ़ोन बंद कर गया, लेकिन रोशी के कानों से हीट निकलना शुरू हो गई। वो बहुत परेशान हो गई, लेकिन खुद को संभालते हुए एक दफ़ा फिर वो अपने बाबा के कमरे में गई और कहा, मुझे शाम को बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मुझे शाम को जाना होगा, इसलिए अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन किंजा जानती थी कि ये काम क्या है और क्यों है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो दोनों बहनें बहुत मजबूर थीं। रोशी अपने कमरे में जाकर परेशानी से इधर उधर टहलने लगी, लेकिन जब 5 बजे तो वो बेदिली से उठकर फ्रेश हुई और तैयार होने लगी। 7 बजे के करीब ड्राइवर उसे लेने आया, जिसके साथ बैठकर वो चली गई। ड्राइवर ने कुछ ही देर में गाड़ी को एक फार्म हाउस के सामने रोका और कहा, मैडम आप अंदर चले जाएं, मेरा काम बस यहीं तक का था। रोशी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए गाड़ी से नीचे उतरी और अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अंदर गई, एक मेड ने उसे एक कमरे में बिठाया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। ये सब देखते हुए रोशी घबरा गई, लेकिन कहा कुछ नहीं और वो एक कोने में बैठ गई। रोशी ये सब सोच रही थी कि उसे कमरे के बाहर आहट सुनाई दी। उसे सुनकर उसका दिल कांपने लगा और वो दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी।
दरवाजे के बाहर अहमर मुस्कुराते हुए खड़ा था और सोच रहा था कि आज मैं रोशी को बताऊंगा कि इज्जत क्या होती है। किसी की भी इज्जत पैसों से खरीदी भी जा सकती है और बेची भी, और ये आज साबित हो जाएगा। और रोशी को हासिल करके मैं उसे ये बताऊंगा कि किसी का भी ईमान इतना मजबूत नहीं होता जितना वो दिखा रही थी। ये सब सोचते हुए वो शैतानी मुस्कुराहट लिए दरवाजे का नॉक घुमाते हल्का सा खोलता तो उसे अपने कानों में तिलावत की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका हाथ वहीं थम गया। तिलावत को गौर से सुनने लगा तो उसने महसूस किया कि यह आवाज़ तो कमरे से ही आ रही है और वो किसी और की नहीं बल्कि रोशी की है। ये सब सुनकर वो कमरे में दाखिल हुआ तो रोशी एक तरफ बैठी आंखें बंद किए कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थी। अहमर बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसका पुरनूर चेहरा, जिसे अहमर ने आज पहली दफ़ा देखा था और देखता ही रह गया। वो बेशक बहुत खूबसूरत थी और उसने अपनी खूबसूरती को बजाय दिखाने के छुपा कर रखा था। अहमर उसे देखते हुए सोच रहा था कि क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। उसने गौर से देखा, सफ़ेद रंगत बड़ी बड़ी आंखें जो कि इस वक्त बंद थीं और उन पर घनी लंबी पलकों ने साया किया हुआ था। सितवा नाक, कटावदार होंठ जो कि लिपस्टिक से आ रही थे। वो बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अहमर तो मबहूत ही हो गया रोशनी की खूबसूरती में। रोशी ने तिलावत करते हुए जब महसूस किया कि उसके करीब कोई हलचल महसूस नहीं हो रही तो उसने आंखें खोली। लेकिन आंखें खोलते ही जो चेहरा उसे नजर आया वो किसी और का नहीं बल्कि अहमर का था, जिसे देखकर वो घबरा गई और रोशी को घबराते देखकर अहमर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था वैसे वैसे रोशी अपने कदम पीछे ले रही थी, यहाँ तक कि वो दीवार के साथ लग गई। अहमर ने मबहूत होते उसके चेहरे की जानिब हाथ बढ़ाया तो रोशी ने आंखें बंद करके चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अहमर थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहने लगा, तुम मुझसे बच नहीं सकती, इस सब का तुमने मुआवजा लिया है। तो रोशी ने रोते हुए कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो एक रात के लिए ही आप मुझसे निकाह कर लें, ताकि मुझे कम से कम ये तसल्ली तो रहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये सब सुनकर अहमर हंसने लगा और कहने लगा, तुम पागल हो, मैं और निकाह, वो भी तुमसे? सोचना भी मत, मैंने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा और ना ही इस निकाह जैसी फजूल रस्म में वक्त जाया करूंगा। इसलिए चुपचाप जैसे जैसे मैं कहूं वैसा करती जाओ। तो रोशी ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उसके पांव पकड़कर कहने लगी, प्लीज़ आप निकाह कर लें और सुबह होते ही बेशक मुझे तलाक दे देना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, ना ही कोई मुतालबा करूँगी। बस प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लें, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगी। अहमर ने रोशी की तरफ देखा तो उसे इसकी हालत देखकर इस पर तरस आया और बाहर जाकर उसने फौरन मौलवी का इंतज़ाम किया और कुछ गवाह लेकर वापस आया। कमरे में मौलवी को ले जाकर बिठाया और कहा, चलो उठो और निकाह पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब देखते रोशी ने जल्दी से अपने चेहरे को ढांप लिया और फिर जल्द ही वो अहमर के निकाह में आ गई। मौलवी और गवाहों को वापस भेजते हुए अहमर रोशी के कमरे में आया और कहा, मेरे ख्याल से हो तो अब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। अब फौरन जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जाओ। ये कहते ही उसने रोशी का हिजाब हटाया और रोशी के लंबे घने बाल बिखर गए, जो रोशी को और भी पुरकशिश बनाने लगे। ये सब देखते हुए अहमर बेकाबू होने लगा और रोशी पर हावी होने लगा। सारी रात उसने रोशी पर अपनी शिद्दतें लुटाईं और जब सुबह हुई तो अहमर ने बिखरी हुई हालत में रोशी को देखा, जो कि उसकी शिद्दतों की वजह से बेहाल हो गई थी। अहमर ने कहा, चलो उठो, अब फ्रेश हो जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। और हाँ, मैं तुम्हें अभी तलाक नहीं दूंगा, मेरा तुमसे अभी दिल नहीं भरा।
जिस दिन मेरा तुमसे दिल भर जाएगा उस दिन तुम्हें तलाक भी मिल जाएगी। अब जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। रोशी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फ्रेश होकर बाहर आई जहां पर अहमर पहले से ही तैयार बैठा था। रोशी को लेकर नीचे आया और ड्राइवर के साथ उसे उसके घर पहुंचा दिया। जब वो घर पहुंची तो किंजा उसके इंतजार में ही बैठी थी। उसकी हालत देखकर वो जल्दी से इसकी तरफ आई और कहा, आप ठीक हैं? कि आपकी हालत को क्या हुआ? तो रोशी ने अपने आंसू साफ करते हुए उसे गले से लगाया और कहा, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। तुम ये बताओ कि बाबा ठीक हैं? उन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चला? तो किंजा ने कहा, नहीं, रात मैंने बाबा को कह दिया था कि आप अपने कमरे में सो गई हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक चुकी हैं, और बाबा को भी मैंने मेडिसिन देकर सुला दिया था। तो रोशी को तसल्ली हुई और वो अपने कमरे में चली गई। कुछ सारी रात के जागने की वजह से और कुछ थकावट की वजह से वो जल्द सो गई। उसकी आंख तब खुली जब दोपहर में उसका मोबाइल बजा। उसने सोए सोए ही कॉल अटेंड करके कहा, कौन? तो मोबाइल के दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो अपने होश में आई क्योंकि वो अहमर की कॉल थी और वो उसे ऑफिस में बुला रहा था। रोशन ने कहा, सर प्लीज़ आज मुझे छुट्टी दे दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अहमर ने कहा, चुपचाप ऑफिस आओ, तुम्हारी तबीयत मैं ठीक कर लूँगा। रोशी बड़ी मुश्किल से उठी और ख़ुद को घसीटते हुए तैयार हुई और दफ्तर के लिए निकल गई। अब तो ये सब उसकी किस्मत में लिख दिया गया था कि अहमर की कोई भी बात नहीं टालनी, और जब जब वो बुलाएगा उसे जाना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वो अफसरदा हो गई और सीधा अपने केबिन में चली गई। लेकिन वो अपनी जगह पर अभी बैठी ही थी कि अहमर ने उसे इंटरप्रेट कॉल करके अपने केबिन में बुला लिया। रोशी उठकर जैसे ही अहमर की केबिन में गई तो वो इसी के इंतज़ार में बैठा था। इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई और अंदर जाकर खड़ी हो गई। अहमर अपनी चेयर से उठा और चलते हुए उसके पास आया और कहा, लगता है कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मेरी वाइफ का क्या हाल है, ठीक कर दूं? तो रोशी घबरा गई और कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूं। उसके इस तरह घबराने पर अहमर मुस्कुराया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया और कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? शौहर हो तुम्हारा, कौन सा कोई गैर महरम हो? और उससे खुद में महसूस करने लगा, लेकिन रोशी कपकपा रही थी। उसकी हालत देखकर अहमर मुस्कुराया और कहा, जाओ अपने केबिन में जाकर काम मुकम्मल करो। रोशी जल्दी से अपने केबिन की तरफ चली गई। उसकी स्पीड देखकर अहमर मुस्कुराया और अपने काम में मसरूफ हो गया। छुट्टी के वक्त जब वो घर जाने के लिए तैयार हुई तो अहमर ने उसे रोक लिया। जब सारा स्टाफ चला गया तो अहमर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और फिर से रोशी पर हावी हो गया। कुछ देर बाद उसने रोशी से कहा, चलो अब अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो इन सब से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत मजबूर थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अहमर को अचानक कहीं जाना पड़ गया और वो एक हफ्ते के लिए किसी काम से आउट ऑफ सिटी चला गया। वहां जाकर उसने मुसलसल रोशी की कमी महसूस की। वो मुसलसल उसी के बारे में सोचता रहा। ऐसा कोई भी लम्हा नहीं था जब उसे रोशी याद ना आती। वहीं इधर वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था जब एक लड़की उसकी तरफ आई और उसके पास बैठकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगी। जब अहमद ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, वो उठकर पीछे से उसके गले में हाथ डालकर उसके कान में कहने लगी, हेलो हैंडसम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। मैं कब से देख रही हूँ तुम परेशान हो और अकेले बैठे हो, चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर दूं। ये सब सुनकर अहमद के माथे पर शिकन आ गई और उसने अपने गले से उसका हाथ निकालकर उसे पीछे की तरफ धकेला और कहा, खबरदार, अगर मेरे करीब आई तो दूर रहो मुझसे। तुम्हारे जैसी लड़कियां जहर लगती हैं। मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो ऐसे ही चिपक जाती हैं। जहां अमीर लड़का देखा नहीं वहां खुद को प्लेट में रखकर पेश कर दिया। ना तो खुद की इज्जत का ख्याल और ना ही अपने वालिदैन की। ये सब कहते हुए वो वहां से चला गया
और वो लड़की पीछे से अपनी बेइज्जती पर गुस्से से बल खाते पैर पटकती चली गई। अहमर अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि एक तरफ तो रोशी है जो अपनी इज्जत की खातिर जान देने तक को तैयार है, और दूसरी तरफ ऐसी लड़कियां जिनके लिए इज्जत का कोई मायने नहीं, बस पैसा ही अहमियत रखता है। उसने दूसरी लड़कियों को और रोशी के साथ मवाजना किया तो उसे रोशी हर लिहाज से बेहतरीन लगी। उसने सोचा एक लड़की को ऐसा ही होना चाहिए जो मजबूत किरदार की हो, जो दूसरों को खुद के आगे झुकने पर मजबूर कर दे, ना कि खुद किसी के आगे झुके। ये सब सोचते हुए उसने तय कर लिया कि इधर से जाते ही मैं रोशी को सबके सामने इज्जत से अपना लूंगा और हमेशा के लिए उसे अपने पास रखूंगा, क्योंकि उससे बेहतर लड़की मुझे मिल नहीं सकती जो कि हर लिहाज से बेहतरीन हो। एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया तो उसने सोच रखा था कि उसे क्या करना है। अगले दिन दफ्तर पहुंचा तो रोशी अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। इतने में उसके पास सानिया आई और उसे बुरा भला कहने लगी और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो रोशी ने उससे कहा, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, जो काम तुम्हारा है वो तुम करो, मैं अपने हिस्से का काम करूंगी, और तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। तो उसने कहा, मैं अहमद सर की सेक्रेटरी हूं और वो अपना काम मुझे देकर गए हैं। सानिया को रोशी एक आंख नहीं भाती थी और वो कब से इसे निकालने पर तुली हुई थी, और अब जबकि अहमद नहीं था तो इस मौके से फायदा उठाती, बात बात पर उसे इंसल्ट करके चली जाती। लेकिन रोशी भी कम नहीं थी, वो यूं किसी की बात नहीं सुनती थी, और अगर उसकी गलती ना होती तो फौरन ही सानिया को टोक देती, और ये बात उसे और भी गुस्सा दिलाती। जब अहमद ने सानिया को रोशनी पर चिल्लाते सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन सानिया को अपने केबिन में बुलाया। अहमद को देखकर सानिया हैरान हुई, वहीं रोशी भी परेशान हो गई। सानिया जब केबिन में आई तो अहमद ने रोशी को भी बुला लिया। सानिया ने रोशी पर झूठे सच्चे इल्जामात लगाकर अहमद को उसकी शिकायतें लगाईं, जिस पर रोशी परेशान होती सानिया को देख रही थी और फिर अहमद की तरफ देखा जो खामोशी से सानिया की बात सुन रहा था। तो रोशी बोली, सर ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। आप चाहें तो हमारे स्टाफ से पूछ लें, जो ये बता रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सानिया अपनी बात पर डटी रही और कहा, सर मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। अहमद कुछ देर दोनों को देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, सानिया आप जा सकती हैं, आप इस नौकरी के काबिल नहीं हैं। ये सुनकर सानिया की तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई और वह आंखें फैलाए अहमद की तरफ देखने लगी और कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया। तो अहमद ने कहा, आप मुसलसल झूठ बोल बोलकर मिस रोशी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि मुझे पता है कि मिस रोशी ऐसी बिल्कुल नहीं। लेकिन सानिया मानने को तैयार नहीं थी। अहमद ने कहा, तुम जानती हो कि ये कौन है? ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती। बीवी का सुनकर सानिया तो सांस लेना ही भूल गई, जबकि सांस तो रोशी की भी रुक गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी के भी सामने अहमद उसे यूं अपनी बीवी के तौर पर पेश करेगा। अगर आपको ये नौकरी प्यारी है तो फौरन रोशी से माफी मांगे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से चले जाएं। ये सुनकर सानिया ने जल्दी से रोशी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने वाकई में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रोशी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी भी किसी पर इल्जाम मत लगाना, क्या पता कोई कितनी मजबूरी में जॉब कर रहा हो और ये जॉब उसके लिए आबे हयात हो। सानिया शर्मिंदा हो गई और कहा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। इतना कहकर वो चली गई। रोशी अहमद की तरफ मुड़ी और कहा, सर क्या मैं भी जा सकती हूं? अहमद ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ लेकिन शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर तुम्हारे बाबा से तुम्हारी रुखसती लेने आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर अपने घर में ले जाना चाहता हूं। ये सुनकर वो और भी हैरान हुई और कहने लगी, सर कितने अरसे के लिए? क्योंकि आपने तो कहा था कि जब तक आपका दिल नहीं भरता आप मुझे छोड़ेंगे नहीं।
اور جیسے ہی دل بھر جائے گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو اس کے بعد طلاق کا دھبا لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی بات سن کر احمد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس ایک ہفتے میں مجھے احساس ہو گیا کہ میں تمہیں کتنا چاہنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ بس اب تم فٹافٹ تیاری کرو میرے پاس آنے کی۔ اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، جاؤ اپنا کام کرو۔ روشی چپ چاپ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی اور احمد کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ لیکن شام کو واقعی احمد روشی کے گھر آ گیا اور اس کے بابا سے مل کر انہیں ساری بات بتا دی، ان سے معافی بھی مانگی اور کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں جو میرا رشتہ لے کر آئیں، اسی لیے میں خود ہی آ گیا ہوں۔ آپ پلیز روشی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ روشی کے بابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا، میری وجہ سے میری بیٹی نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ احمد نے فوراً ہاشم آغا کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں، آپ میرے بابا جیسے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روشی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ یہ کہہ کر اجازت لیتے ہوئے وہ روشی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے گھر میں لا کر اسے اپنے سامنے کیا اور کہا، ویلکم ٹو آور ہاؤس، اب سے یہ میرا نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اسے اور مجھے دونوں کو سنبھال لو گی۔ تو روشی نے احمد کی بات سنتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی اور احمد نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور کہا، میں جانتا تھا تم مجھے نا امید نہیں کرو گی۔ اور وہ دونوں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا اور احمد اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔